Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our lecture number 11 and we are studying numerical differentiation. The topic of today's lecture is derivatives by using Gauss's forward interpolation formula. In our previous lecture, we have studied how to get the derivatives by using Newton's forward interpolation formula and Newton's backward interpolation formula. Today, we will learn how to differentiate a function whose explicit form is not given, only tabular data is given by using Gauss's forward interpolation formula. First of all, Gauss's forward interpolation formula आप लोगों ने न्यूमेरिकल 1 के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. उसकी डेरिवेशन, उसकी टेबल सेटिंग, फॉरवर्ड डिफरेंसेस की जो तरतीब है, एक्स नॉट कैसे लेते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये फार्मूला कहाँ पे बेनिफिट देता है हमें ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूमेरिकल 1 के अंदर स्टडी की होंगी. तो एक तो हम वही चीज़ें रिवाइज करेंगे कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है, इसका मेन बेनिफिट क्या है, और फिर हम इसको यूज़ करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव्स. Gauss's forward interpolation formula is given by y is equal to y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 delta square y minus 1 over 2 factorial plus p into p minus 1 into p plus 1 into delta cube y minus 1 over 3 factorial and so on. तो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आपने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास एक जैसे सबस्क्रिप्ट्स आ रहे होते थे. लाइक न्यूटन्स फॉरवर्ड में सिर्फ वाई नॉट यूज हो रहा था हर एक टर्म के अंदर. न्यूटन्स बैकवर्ड में वाई एन यूज होता है, ठीक है, पूरे फार्मूले के अंदर. बट इन दिस फार्मूला यू कैन सी दैट द सबस्क्रिप्ट्स आर चेंजिंग आफ्टर ईच 2 टर्म्स. हर 2 टर्म्स के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो सबस्क्रिप्ट है y के साथ वो चेंज हो रहा है. If you look at here, in first 2 terms, it is y naught. In third and fourth term, it is y minus 1. In fifth and sixth terms, it is y minus 2. So, there is an arrangement, there is an order that 2 terms contain the same subscript. We will also learn from table that how we will choose the values from the table while using this Gauss's forward formula. We can simplify the above equation by multiplying the terms like p into p minus 1. It will become p square minus p after multiplication. These 3 terms will also be multiplied. And after simplification, you will get this equation. P square minus p delta square y minus 1 plus, after multiplying these 3 factors,
you will get p cube minus p delta cube y minus 1 over 3 factorial and so on. Actually हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने इस फार्मूला का डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स फैक्टर की फॉर्म में आ रही थी उन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जब हमें डेरिवेटिव लेना हो तो हम सिंपली पावर रूल लगा के डेरिवेटिव ले सकें। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा टाइम जो आपका डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसमें जो अरेंजमेंट है इस मेथड के हवाले से वो हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आपने न्यूमेरिकल 1 के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की होंगी। सो वी विल रिवाइज दीज थिंग्स अगेन। You can see that in this method x naught is taken from the center because sometimes you have to find the derivative at the central value of the independent variable or any value near to the center value of x. So in such cases we take the central value of x as x naught. So the value above this value will be x minus 1, then x minus 2, x minus 3, x minus 4, and below the central value it will be x1, x2, x3 and x4. Similarly, the values of y will be according to the subscripts placed with x. जिस तरह के सबस्क्रिप्ट x के साथ लगे हुए हैं सेम उसी तरह के सबस्क्रिप्ट्स y के साथ भी आ जाएंगे। x माइनस 4 है तो y माइनस 4 आ जाएगा, x माइनस 3 है तो y माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 2 है तो y माइनस 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। नाउ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको पता है, इस कॉलम में डेल्टा y, फिर डेल्टा स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब, फिर डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6 एंड सो ऑन। सो जब आप डेल्टा y निकालते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले उसके साथ कौन सा सबस्क्रिप्ट आता है जो यहाँ पर आपकी सबसे पहले y के साथ आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर y नॉट था तो यहाँ पर डेल्टा y नॉट आ रहा था। अब y माइनस 4 है तो उसी हिसाब से यहाँ पर डेल्टा y माइनस 4 आ रहा है और फिर एक तरतीब के साथ वैल्यूज रिपीट हो रही है। माइनस 4 के बाद माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, सबस्क्रिप्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की तरतीब आपको ऑलरेडी पता है। सेम लाइक दैट इन सेकंड डिफरेंस टेबल, सेकंड डिफरेंस ऑर्डर, डेल्टा स्क्वायर y minus 4, here will be the subscript minus 4, then minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, and similarly in delta cube we will subtract these two values and we will get delta cube y minus 4, then delta cube y minus 1 will be obtained by subtracting these two values, then delta cube y minus 2 and so on. And in this column delta 4y minus 4 is the first term and delta 4y minus 3, delta 4y minus 2। ये डेल्टा 4 वगैरह आप कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। इन दोनों को हम माइनस करते हैं, फिर इन दोनों को माइनस करते हैं, डेल्टा 4y माइनस 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों को माइनस करते हैं, डेल्टा 4y माइनस 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो यू विल कंप्लीट द टेबल लाइक दिस। नाउ दिस येलो लाइन विथ green text is considered as our central line and this line will be considered as the line below the central line.
सो मैंने हाईलाइट कर दिया है जो वैल्यूज हमारे फार्मूला के अंदर यूज होंगी। एक तो वो सेंट्रल लाइन वाली यूज होंगी, दूसरा वो इस लाइन में जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर रेड टेक्स्ट के अंदर हाईलाइट हुए हुए हैं आपकी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ आपकी यूज़ होंगी फार्मूला के अंदर। तो तरतीब कुछ इस तरह की होगी कि वाई नॉट के बाद डेल्टा वाई नॉट आएगा, फिर उसके बाद हम इधर जाएंगे डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन आ जाएगा, फिर नीचे आएंगे डेल्टा क्यू वाई माइनस वन, फिर ऊपर डेल्टा फोर वाई माइनस टू, अगेन नीचे डेल्टा फाइव माइनस टू, और अगेन आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे डेल्टा सिक्स वाई माइनस थ्री, और यही तरतीब आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो ये आप कह सकते हैं the Gauss forward interpolation formula uses odd differences. Okay, you can see that the differences which will be used in your method are delta y naught, delta q y naught, delta 5 y minus 2. These are odd differences. These are below the central line. And here you can see these are the even differences, delta square, delta 4, delta 6. These differences are lying on the central line. So यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है. The Gauss forward interpolation formula uses odd differences below the central line and through y naught, and even differences on the central line. अब इसमें मजीद जो चीज नोटेबल है वो ये है कि Gauss forward formula is used to interpolate the values of function near the middle of the table. जब आपको x आपके मिडल वैल्यूज के करीब करीब दिया गया होता है तो आप ये फार्मूला यूज करते हैं, और इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको तब मिलता है जब आपका p इस रेंज में आ जाए 0 से 1. व्हाट इज p? p is x minus x naught over h. So from this range one thing is clear, that p must be positive, but it should be less than 1. How it will be positive? When x will be greater than x naught. It means that when x will be greater than x naught, your p will be positive, and we will decide after the value of x is given, we will decide that how we have to choose the value of x naught to get the p in this range. So p is equal to x minus x naught over h. क्वेश्चन के अंदर आपका p इस रेंज में होना चाहिए जब आप ये फार्मूला लगा रहे हो. ठीक है, तो एक बात तो ये कि आपका x हमेशा x नॉट से बड़ा होगा तभी पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन आपने साथ साथ ये चीज़ भी सामने रखनी होगी कि आप x नॉट इस तरह से डिसाइड करें कि आपका p 1 से लेस हो, तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने x नॉट डिसाइड करना होगा, क्योंकि x नॉट हमारी अपनी चॉइस होगी. अगर तो आपकी 5 वैल्यू हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें सेंटर क्लियर होता है, थर्ड वैल्यू विल बी द सेंट्रल वैल्यू, तो हम उस पर एक्स नॉट ले लेते हैं. बट अगर आपके टेबल में 6 वैल्यूज दी हुई हों एक्स की, देन देयर आर 2 सेंटर्स, थर्ड और फोर्थ दोनों सेंटर ही होंगे, तो हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं एज एक्स नॉट. तो हम उसको एक्स नॉट चूज़ करेंगे जो हमें पी की वैल्यू इस रेंज के अंदर देगा. ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर हम ये चीज़ें इंश्योर करेंगे. Now if we will take derivative of p with respect to x, its answer will be 1 over h. Now we take derivative of equation number 1. You will get this expression dy by dx, and on right hand side you will get this expression
dp by dx is throughout common, and the other differences will be treated as constant. So after derivative, you get this form. Now we will make some simplifications, like dp by dx will be common. So first of all, we will take dp by dx as common factor, and rest of the terms will be collected in this square bracket. But dp by dx, as you have seen here, that dp by dx is equal to 1 over h. So we will use the value of dp by dx as 1 over h in this expression, and we will get this relation. So this is the Gauss's forward interpolation formula, which will be used to calculate the first derivative when you are given a table of any unknown functions and you have to find its first derivative at any particular point. जब क्वेश्चन करेंगे आपको पॉइंट दिया गया होता है हमेशा y x की वैल्यू, तो वो x की वैल्यू आपके सेंट्रल वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकती है और उससे डिफरेंट भी हो सकती है, बट उससे ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ये मेथड जो है वो इतना एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगा. So next we will differentiate equation number 2. This is our equation number. Sorry. Actually, this equation is equation number 2. Its number is not written here, but you can take it as equation number 2. So after differentiating above equation, we get d2y by dx square. On left hand side and on right hand side, again you will adopt the same procedure. All the numbers like factorials and deltas will be considered as constant. Only the terms which will be considered as variable are the terms involving p, and we will use chain rule on those terms like this. यहाँ पर p था, p का डेरिवेटिव 1 आ गया और उसका चेन रूल के थ्रू हमने डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया. 6p यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमारे लास्ट स्लाइड के ऊपर आप देखें क्या था, 3p स्क्वायर था, इसका डेरिवेटिव लिया तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, 6p आ जाएगा. इसी तरह p का डेरिवेटिव dp बाई dx आपने मल्टीप्लाई कर दिया. अब अगेन अगर आप सेकेंड टर्म में देखें, सेम इसी तरह से हमने पावर रूल लगाया, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू p और p का डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x. सिमिलरली आप थर्ड टर्म का डेरिवेटिव लें. थर्ड टर्म क्या थी हमारी, 4p क्यूब, इट विल बिकम 12p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर, it will become minus 12p minus 2p, it will give minus 2 after derivative. Similarly in this term after derivative it will give 20p cube minus 30p plus 0. So it is simple derivative. You can verify these values. Again we will make some simplification here, like 2 will be cancelled with 2 factorial, 6 will be cancelled with 3 factorial, and similarly यहाँ पर भी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 कॉमन ले लें, उसके बाद उसमें 4 फैक्टोरियल के साथ
कैंसिल करें तो उसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 इंटू 3 12 आपके पास बच जाएगा। एक तो आप ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दूसरा आप ये करेंगे कि जो डी पी बाई डी एक्स आ रहा है उस सब टर्म के साथ आ रहा है, तो आप उसको कॉमन ले लें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं हमने डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया, इस 6 को 6 के साथ कैंसिल कर दिया 3 फैक्टोरियल के साथ, यहाँ पे 2 कॉमन लिए, नीचे 24 लिख लिया, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास 2p क्यूब माइनस 3p बच जाएगा, नीचे 5 फैक्टोरियल को 120 लिख लिया। तो ये हमने कुछ सिंप्लीफिकेशंस कर ली हैं, कुछ नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये 2 इस 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 10 इस 120 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 24 के साथ कैंसिल करें, इस 10 को 120 के साथ, और डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। सो इन नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले हमने क्या किया, कैंसलेशन की है कोफिशिएंट्स की, जहाँ जहाँ पे वो कैंसिल हो रहे थे। डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू अभी हमने पुट नहीं की। इन आवर नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी दैट हमने डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। इसकी वैल्यू क्या थी 1 ओवर एच, तो एक 1 ओवर एच ऑलरेडी यहाँ पे था, एक 1 ओवर एच यहाँ से आएगा तो इट विल गिव 1 ओवर एच स्क्वायर, अंदर आपके पास डेल्टा स्क्वायर बाय माइनस 1 बच गया, पी डेल्टा क्यू बाय माइनस 1 आ गया, 6p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 1 ओवर 12, डेल्टा 4y माइनस 2 आ गया आपके पास, और लास्ट टर्म में 2p क्यूब माइनस 3p ओवर 12, डेल्टा 5y माइनस 2 आ गया। तो यहाँ पर हमने डेल्टा 5 तक इसको डिराइव कर लिया है। अगर आपके क्वेश्चन में डेल्टा 5 तक की वैल्यू यूज हो रही हो तो आप यहाँ तक इसको चलाएं। अगर डेल्टा 6 आ रहा है एक टर्म आपको और डिराइव करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका p 0 और 1 के दरमियान में होता है तो जो जो उसकी पावर इंक्रीज होती जाए उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कम होती जाती है, यानी उसका जो इफेक्ट है हमारे रिजल्ट के ऊपर, हमारे वैल्यूज के ऊपर, वो कम होता चला जाता है, क्योंकि p जितना भी स्मॉल होगा तो उसकी बड़ी पावर उसको और स्मॉल करती जाएंगी। तो इन केस अगर आपके टेबल के अंदर डेल्टा 6 आ भी रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आप डेल्टा 5 तक की वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप डेल्टा 6 यूज ना भी करें तो इट विल नॉट मेक अ मच डिफरेंस, उससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। लेकिन बेहतर यही है कि आपकी जितनी टेबल के अंदर डेल्टास यूज हो रहे हैं आप उन सब को यूज करें ताकि एरर आपका कम से कम हो। सो दिस इज कॉल्ड गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव। जो मेन चीज है इसमें नोट करने वाली वो यही है कि ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपको x की जो वैल्यू है वो आपके टेबल की मिडल वैल्यू के करीब करीब दे दी जाए या टेबल की मिडल वैल्यू के इक्वल ही दे दी जाए, तो फिर आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। वो आपको आंसर दे तो देगा लेकिन उसमें एरर बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह के सिचुएशंस के अंदर जब आपको एक्स सेंट्रल वैल्यू के करीब दिया गया हो तो इट इज़ मच बेटर कि आप गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करें। तो उसके लिए एक कंडीशन है 0 लेस देन p लेस देन 1। आपके p की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होगी तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आए हैं ये ज़बानी याद करने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चंस के अंदर आप इनको एज इट इज़ यूज़ कर सकें।
इनके कोफिशिएंट्स की तरतीब कोई एज सच उस तरह से नहीं आती जिस तरह न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड या इवन गॉसेस फॉरवर्ड गॉसेस बैकवर्ड सिंपल एफ ऑफ एक्स के लिए होते हैं या सिंपल वाई के लिए होते हैं, उसमें ख़ास तरतीब बन रही होती है। लेकिन जब आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो कोफिशिएंट्स की वो तरतीब चेंज हो जाती है और यहाँ पर जो तरतीब बनती है वो थोड़ी रैंडम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें पी है, फिर 6p² माइनस 6p माइनस 1, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, कोई ख़ास तरतीब नहीं बन रही। तो ये आप लोगों ने केयरफुली इसको याद रखना होगा ताकि यहाँ पर किसी भी कोफिशिएंट की मिस्टेक ना हो। तो इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने जस्ट इसको इंट्रोडक्शन देना था इस मेथड का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल करेंगे। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि आपने अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सा जो मेथड है आपको बेटर रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, थैंक यू जी।